Hello all my dear students, a very precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, welcoming you to all once again on my official YouTube channel Biology Art of Fingers. Up till now we have discussed about the structure and function of placenta, and today we all set to start with a new topic, that is pregnancy and embryonic development. This topic is very important for your competitive and board examination, because from this topic always at least one question asked in your different kind of examination. So today I hope that after seeing this video you will not have any kind of doubts related to this topic. So without wasting the time, get ready and watch the video, and I am going to start. So actually development of human being can be divided into two phases. So we will start development of human being. Development of human being can be divided into divided into two phases. Divided into two phases. The first one is here prenatal phase. Prenatal phase, or we can say that prenatal period, that will be more convenient. Prenatal period, this one is known as before birth period, and the second one is here postnatal period. Postnatal period, and this one is known as after birth period. तो अभी तक हमने जाना कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो प्रीनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है. प्रीनेटल फेज बिफोर बर्थ का है और पोस्टनेटल फेज क्या है बेटा? Actually what happen in the prenatal phase? So here in prenatal phase, in prenatal period, blastocyst develops and attached to the endometrium. यानी प्रीनेटल फेज में बेटा क्या होता है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाएगा, जिसे आप कहते हो इम्प्लांटेशन. ओके, एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट द फर्स्ट 2 month, we can say that 8 week considered as what? We have discussed that the first 2 months, we can say that 8 week of development is considered as the first 2 months, 8 week, we can make it here, of development is considered as embryonic period. यानी जो पहले 2 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, यानी नियरली अबाउट 8 वीक्स, उनको हम क्या कहते हैं? वो एम्ब्रियोनिक मंथ. फ्रॉम 9th week until birth. From 9th week until birth, this is known as fetus. यानी फर्स्ट 8 वीक में क्या था? वो एम्ब्रियोनिक पीरियड था, और 9th वीक से जब तक बर्थ नहीं हो जाता है, डिलीवरी नहीं हो जाती है, पार्चुरेशन नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको क्या कहते हैं? वो फीटस है. Pregnancy is divided into 3 months period known as trimester.
ट्राइमेस्टर यानी जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम 3-3 महीने की गैपिंग पे डिवाइड कर देते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइमेस्टर कहते हैं। ओके, सो देयर आर टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स। सो देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स। There are 3 trimesters. We can term them first trimester, second trimester and third trimester. First trimester, second trimester and third trimester. Total 3 trimesters, and in these 3 trimesters, as you know that there are total 9 months of gestation period, and out of those 9 months we have divided into 3 trimesters, the first, the second one and the third one. In the first trimesters, as you know, development of heart as well as limbs as well as nervous system will be started. In the second trimesters, movement in the fetus is started, that is very important, and appearance of hair as well as formation of eye and eyelids. And in the third trimesters, appearance of hair on the whole body as well as dense hair on the head portion, as well as a clear movement of the fetus, as well as more and more growth in the lower parts of the fetus, as well as functioning of various organs. So we will discuss all those in the next part. So this was all about, let's quickly recap. The development of human being can be divided into 2 phases. Prenatal phase जो before birth का होता है, postnatal जो after birth का होता है। प्रीनेटल फेज में बेटा क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, मोरुला बनाएगा, मोरुला से फिर ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस स्टेज कहते हैं, वो अटैच होगा जिसे आप इम्प्लांटेशन कहते हो। द फर्स्ट 2 मंथ जो 8th वीक होता है प्रेगनेंसी का, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड, और 9th मंथ से टिल बर्थ का जो पीरियड होता है उसको हम फीटस कहते हैं। प्रेगनेंसी को हम 3 मंथ की 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इतना अभी तक आपको बताया गया। नेक्स्ट पार्ट में जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बेटा, ये बिगिंस होता है, begins at fertilization. This is important. The first trimester begins at fertilization. पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट मंथ में कौन कौन से चेंजेस होंगे। इन द फर्स्ट मंथ, formation of heart and formation of heart and formation of nervous system is started। यानी जो पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें हार्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। And second one is the length of the fetus. Length is nearly 1.25 सेंटीमीटर। यानी जो फीटल लेंथ होती है नियरली 1.25 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ पे हार्ट और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं एक्चुअली सेकंड मंथ में क्या होता है। लिम्स एंड digits formation, limbs and digits formation, eye formation start, eye formation also is started. The first one is limbs and digits formation, eye formation also started, and third, that is important, sex organs develop, sex organs develop। उसके बाद हम देख लेते हैं लेंथ जो हमारे फीटस की होती है और वेट जो फीटस का होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और जो वेट हेड फॉर्मेशन स्टार्टेड, हेड फॉर्मेशन स्टार्ट्स। सो इन द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हेड फॉर्मेशन और हेड ग्रोथ स्टार्ट। हेयर bone formation started, head
growth, we can say that, not head formation here, head growth starts. So in the third one, growth of head started as well as what formation हो जाता है बेटा bone का start. Next, digestive organ begins to function यानी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. आर्म्स एंड लेग्स स्टार्ट टू मूव, यानी जो आर्म्स और लेग है वो स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट. अब हम देख लेते हैं लेंथ और दूसरा बेटा देख लेते हैं वेट कितना होता है. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे बेटा, जो वेट होता है वो 3 ग्राम का होता है, 0.3 grams. एंड हियर लेंथ इज हियर 7.5 centimeter and the weight is 30 grams. यानी जो वेट है वो कितना है 30 ग्राम का है. और यहाँ पे जो सेकंड मंथ था वहां पे वेट कितना था 3 ग्राम का था. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर. एक बार फिर से देखते हैं फटाफट, क्विक बुलेटिन है हमारा. फर्स्ट मंथ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन स्टार्टेड, लेंथ 1.25 centimeter. सेकंड मंथ लिम्स डिजिट्स फॉर्म, आई फॉर्मेशन स्टार्टेड, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप, लेंथ 2.5 centimeter, वेट 3 grams. Third month, head growth starts rapidly, bone formation started, digestive organs begin to function as well as arm and legs start to move. और जो बेटा लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर की और जो वेट है नियरली 30 ग्राम का हो जाता है. ये हमारा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अब हम देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर. हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम देख लेते हैं सेकेंड कर देते हैं. यहाँ पे दिस वाज द सेकेंड, दिस वाज द फर्स्ट मंथ. यहाँ पे हम कर देंगे फोर्थ मंथ, दिस वन इज फिफ्थ मंथ और यहाँ पे हम कर देंगे सिक्स्थ मंथ. अब हम देख लेंगे फटाफट फोर्थ मंथ में क्या होता है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, सिक्स्थ मंथ में क्या होता है. इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द फोर्थ मंथ लोअर बॉडी पार्ट्स स्टार्ट ग्रोथ रैपिडली, यानी रैपिड ग्रोथ होती है लोअर बॉडी पार्ट्स में. का फोर्थ मंथ में बोन्स बिकम्स डिस्टिंक्ट, यानी बोन यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं. और सेक्स ऑर्गन फुल्ली फॉर्म, यानी अब जो सेक्स ऑर्गन था वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है. देख लेते हैं बेटा लेंथ और वेट को भी. यहाँ द लेंथ इज हियर 18 centimeter and the weight is 150 grams. यानी चौथे मंथ में पहुंचते वेट 150 ग्राम का हो जाता है. फिफ्थ मंथ appearance of hair on the head and first movement of fetus, यानी जो फीटस मूव करना स्टार्ट कर देता है फिफ्थ मंथ तक आते आते. और हेयर जो है वो हेड पे आ जाते हैं. और ये था हमारा फिफ्थ मंथ. अब हम देख लेते हैं सिक्स्थ मंथ में. वेट और लेंथ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या हो जाती है लेंथ, और 160 से 170 ग्राम की हो जाती है वेट हो जाती है किसकी, फीटस की. आते हैं सिक्स्थ मंथ में. इन द सिक्स्थ मंथ आई एंड आईलिड्स फुल्ली फॉर्म, यानी जो आंखें हैं और फैट डिपोजिशन अंडर स्किन स्टार्टेड, यानी जो हमारे स्किन के नीचे वहां पे फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है. देख लेते हैं लेंथ
और वेट को फटाफट, यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो लेंथ 35 सेंटीमीटर के आसपास और वेट है आपका 900 ग्राम्स, जो कि 6th मंथ तक आते आते होता है। ये था सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब हम देख लेते हैं थर्ड और लास्ट ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर, यहाँ पे हम थर्ड ट्राइमेस्टर में बेटा देखेंगे 7th मंथ, 8th मंथ और 9th। तो 7th मंथ में यहाँ पे देखते हैं फटाफट, 8th मंथ में भी देख लेते हैं और 9th मंथ में भी यहाँ पे देखते हैं। 7th, 8th and 9th month. First of all, we will start with 7th. Cerebral cortex of the brain develops rapidly. यानी जो सेरेब्रल आपका कॉर्टेक्स है कहाँ, ब्रेन का, वो तेजी से ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बेटा जो लेंथ है वो 39 सेंटीमीटर के आसपास और जो वेट है वो 1.5 केजी के आसपास हो जाता है। यानी 7th मंथ में 1.5 केजी के आसपास वेट है और इसके साथ साथ 41 वी कैन कंसीडर इज 39 to 41 सेंटीमीटर। यानी 7th मंथ में सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का है बहुत तेजी से डेवलप होगा। लेंथ 40 से 41 सेंटीमीटर की और जो वेट है 1.3 से 1.5 केजी तक हो जाता है 7th मंथ में। और 8th मंथ फैट डिपोजिशन कंप्लीटेड हो जाता है। फैट डिपॉजिटेड अंडर स्किन, यानी स्किन के जो अंडर है वहां पे फैट डिपॉजिट हो चुकी है। नेल्स अप टू फिंगर टिप, यानी जो नेल्स हैं वो फिंगर टिप्स तक, ये जो नेल्स थे पूरी उंगली तक डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे बेटा जो लेंथ है वो देखते हैं और वेट देख लेते हैं। तो बेटा जो वेट है वो 2.25 to 2.50 केजी का हो जाता है और जो लेंथ है वो नियरली 45 to 47 सेंटीमीटर हो जाती है। 9th मंथ में क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं 9th मंथ। 9th मंथ में क्या होता है, 9th मंथ में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट्स फंक्शनिंग। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो ऑर्गन सिस्टम है वो पूरी तरह से काम करने लगता है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, फीटस सेटल्स इन बर्थ पोजीशन। यानी अब यहाँ पर जो फीटस है वो बर्थ पोजीशन में सेटल हो जाता है। तो ये था बेटा तीनों ट्राइमेस्टर्स हमारे जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें अप टू 6 मंथ और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें अप टू 9th मंथ। हार्ट और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाता है। फीटस की जो मूवमेंट है वो 5th मंथ में स्टार्ट होती है और फीटस जो है बर्थ पोजीशन में कब आता है, 9th मंथ में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, एक्चुअली हार्ट का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है फर्स्ट मंथ में ही, ठीक है। उसके बाद जो फीटस मूवमेंट होती है, जो पहली फीटल मूवमेंट होती है वो 5th मंथ में होती है और उसके बाद जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कब 9th मंथ में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, एक्चुअली लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है 7th मंथ में। लंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा 7th मंथ और वो जाके कंप्लीट होता है 9th मंथ, या आफ्टर बर्थ भी उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो लंग्स जो है वो बर्थ के बाद भी डेवलप करते हैं और इनका डेवलपमेंट 6 to 7th मंथ में ही, 6 मंथ्स के लास्ट या 7th मंथ के स्टार्टिंग में वो स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, तो ये था बेटा टोटल प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। अगला हमारा 2 टॉपिक और बचा हुआ है, हम डिस्कस करेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले दिन हम अगले वीडियो में पार्चुरेशन और लैक्टेशन दोनों हम कवर करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। If you like the video, press like button. You can subscribe the channel by pressing bell icon. You will get latest notification. And if you have any queries, any doubt related to the topic, you will leave in the comment box. And one more important thing, keep smiling and have a nice day.